Okay, so in this class we'll be discussing about work. Okay, this is the continuation of previous lecture. So in previous class we wrote the definition of work and we defined the work as force dot displacement. Okay, F dot S. इस तरह से अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है and you are applying some force on the object and this object covers displacement in this direction, S is the displacement in this direction, then say for example theta is the angle, तो हम कहते हैं work is nothing but it is force कितना आपने अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट कितनी आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसमें. ठीक है, तो इट इज नथिंग बट इट इज एफ एस कॉस थीटा. ओके, दिस वाज व्हाट वी कैलकुलेटेड इन प्रीवियस क्लास. सो वर्क इज नथिंग बट इट इज फोर्स एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो इस तरह से है. अगर हम इस तरह से लिखे बेटा, इफ एफ इज इक्वल टू, अगर हम फोर्स को लिख सके ऐसे, एफ एक्स आई कैप, जे कैप एफ वाई, k cap f z. Okay, we have resolved the force into three components, right? Similarly, displacement can be resolved. It may be I cap x, y cap j and z cap k. Okay, इस तरह से है. Say for example आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे, and what you have done, आपने क्या किया है, आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया. पहले ये पॉइंट ए पर था, अब ये पॉइंट बी पर आ गया है. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एस. एम आई राइट? ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज से फॉर एग्जांपल r1, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज से फॉर एग्जांपल r2. ओके, say for example this point has coordinate x1 y1 z1 and this point has coordinate x2 y2 z2. Am I right? So what can I say? I can say work is nothing but it is force multiplied to displacement. Okay, force dot displacement. So we can write work as, let me write force as I cap fx, j cap fy, k cap f z. Okay, then dot with displacement. What is displacement? It is given I cap x, j cap y, k cap z. Okay, so we can write force as, taking the dot product, पहले तो आप इसका कर लीजिए, I cap fx multiplied to I cap x, तो it will be fx multiplied to fx. Okay, then I cap x multiplied to j cap y, I dot j that will be 0. Okay, ठीक है, dot product between perpendicular vectors is always 0, plus then इसी तरह से I dot k that is also 0, है ना. Do remember one thing, I will repeat here, I dot I, j dot j, k dot k, these three are 1. Okay, I dot I, j dot j, k dot k is 1, otherwise all the things are 0. I dot j, j dot I dot k, k dot I, k dot j, j dot k. Okay, these all are 0. These all are 0. Is that clear? Let us define it in this way. Delta x, let me define it. Okay, I will define it like this way. Delta x y, ठीक है, delta x, delta x y is equal to 1 or is equal to 0. 1 in the case when x is equal to y and 0 in the case when x is not equal to y. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने. देखो मैं आपको समझाता हूं. देखिए बेटा, अगर आप x, अगर यहाँ पे x और y जो है ना, that may be I, j और k. ठीक है, देखो आप इस तरह से लिख सकते हो डेल्टा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज,
एक्स और वाई बराबर हो सकता है एक्स और वाई बराबर हो, तो यू कैन राइट डेल्टा एक्स एक्स, ओके। और वो क्या होगा, दैट विल बी एक्स के बदले आई कैप, जे के बदले आई कैप, ठीक है, तो दैट विल बी 1, ओके, ठीक है। देखिए, लेट मी जस्ट अंडरस्टैंड इट इन ए सिंपल मैनर, दैट इज दिस थिंग। अगर ये दो कंपोनेंट्स मैच कर जाते हैं, ठीक है, अगर ये दो कंपोनेंट्स क्या करते हैं, मैच करते हैं, अगर एक्स और वाई मैच करता है, एक जैसे होते हैं, तो ये प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा, ठीक है। और अगर ये मैच नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है कि नहीं। सो व्हाट आई हैव रिटन इट लाइक दिस वे, if x and y matches, then the product is 1, and if x and y does not matches, then the product is 0, okay। say for example x and x matches, x क्या हो सकता है, i, j या k। चलो अगर आपने x का वैल्यू लिया i, तो y का वैल्यू भी क्या लेना पड़ेगा, i, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, i डॉट i, ठीक है, दैट विल बी 1, ओके। अगर आपने x का वैल्यू ले लिया j, तो j डॉट j, दैट विल बी 1, ओके। इस तरह से k डॉट k, दैट इज 1, ओके यार, देयर इज नथिंग, इफ यू वांट टू रिमेंबर, अगर आप चीजों को ऐसे याद रखना चाहते हो इसी तरीके से, ये वाला टेबल, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट मैंने ऐसे ही कहा कि हम इसको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये है, ठीक है। हायर ये फिजिक्स में इस चीज को यूज किया जाता है, एनीवेज इट्स कस्टमरी, यू कैन यूज इट और रिमेंबर दिस इन दिस पैटर्न, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं, ठीक है। ये वेक्टर एनालिसिस में हो चुका है। इस तरह से जे डॉट दिस, इट विल बी वाई एफ वाई, इस तरह से दिस जेड एफ जेड, ओके। सो ये हो गई वर्क, ठीक है, दिस इज द वर्क, ओके। अब यहां पे एक चीज है, यहां से वेक्टर एस जो है ना, आप ऐसे भी लिख सकते थे, वेक्टर एस को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर एस फ्रॉम हियर इट मे बी रिटन एज x2 minus x1 i cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. So we can write it x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. Is that clear? अब देखो, so वर्क कैसे निकलेगी then, f dot s, force is I cap fx, j cap fy, k cap fz, then taking the dot, x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, okay, then z2 minus z1 k cap, okay, taking the dot. तो w will be equal to, इस i कंपोनेंट का आप इस i कंपोनेंट के साथ कर लो, तो इट विल बी x2 minus x1 fx, similarly y2 minus y1 fy, z2 minus z1 fz, ओके, ठीक है। ये हो गया वर्क के लिए फॉर्मूला, राइट। देखिए, दीज थिंग्स आर रियली वेरी सिंपल इफ यू नो वेक्टर एनालिसिस, ओके। आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल सो दैट आपको ये चीज क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। देखिए बेटा, इफ अगर एक ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स दिया गया है 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप, एक ऑब्जेक्ट है उस पर इतना फोर्स लग रहा है, इट इज गिवन, ठीक है। और सपोज के तौर पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, इट इज 3i minus 4j plus 2k, ओके। फोर्स इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। अब आपको क्या निकालना है, वर्क। वर्क किसके बराबर आएगा, F डॉट S, ठीक है। तो व्हाट इज F, इट इज 2i 3j 4k डॉट S, S is this thing 3i 4j 2k, ठीक है। मतलब आपको इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। देखो मैंने कैसे डिफाइन किया वर्क, x एफ एक्स, y एफ वाई, z एफ z। तो x तो ये हो गया ना 2, और एफ एक्स हो गया, देखो दो चीजें, एक है x और दूसरा एफ एक्स। x इज दिस 3 and fx is 2 plus x, then y minus 4 and fy minus 3, then z 2 and fz 4, okay।
So you may calculate it. This is 6 minus, that is 23, 4 are 12, and this is 8. Okay, this will be 26 joule. Right? Is that clear? अब समझ आया? चलिए इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन टेक अदर क्वेश्चंस आल्सो. सो इस तरह से होगा आपके पास. से फॉर एग्जांपल, इफ फोर्स इज गिवन बाय 2i cap plus 4j cap 9 cap, okay, and object moves from 2, 4, 6 to 1, 2 and 3. ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मूव कर गया. कहां से? पहले वो था 2, 4, 6 पॉइंट पर और उसके बाद चला गया वो कहां पे? 1, 2, 3 वाले पॉइंट पे. ठीक है, आपको निकालनी है वर्क. ओके, दिस केस इज प्रीवियसली, मतलब ये डिफाइंड है इस फॉर्मूला से. ओके, ठीक है, इट इज सिमिलर. पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पर 2, 4, 6 पर, तो ये पॉइंट 2, 4, 6 है. उसके बाद चला गया 1, 2, 3 पर, मतलब चला गया यहाँ पे 1, 2, 3 पर. ठीक है, वर्क कैन बी कैलकुलेटेड इजीली. सो वर्क इज इक्वल टू, पहले तो आप देखिए x2 माइनस x1. ओके, इट इज x2 इज 1 माइनस 2, तो वी कैन राइट इट 1 माइनस 2, and then it is fx is what? 2, then plus, okay, then y2 minus y1, 2 minus 4, and then this one 4. Okay, then write 3 minus 6, then it is 9, that is, this is minus 2 plus this is minus 4 2 are 8. This will be minus 9 3 are 27. Okay, that's minus 37 joule. No problem, work can be negative. Okay, so you may remember these one. Okay, now coming to this thing, it is units of work. ठीक है, पहले हम देखेंगे कि how units of work are defined. देखिए बेटा, there are various ways in which you can define the unit of work. ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं. ऐसे सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से बाकी सिस्टम्स में भी डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ओके, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर एसआई सिस्टम. चलिए एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करते हैं यूनिट क्या होगा वर्क का. ठीक है, देखिए आपको पता है वर्क इज नथिंग बट इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो बताइए मुझे फोर्स का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में? न्यूटन. और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर. तो वर्क का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन मीटर, एंड दैट इज कॉल्ड एज जूल. ठीक है, देयर वाज अ साइंटिस्ट पर कॉस्ट जूल, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया जूल. ठीक है, तो आप कब कहेंगे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल? वर्क इज सेड टू बी 1 जूल. देखिए, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगेगा और उससे वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 1 मीटर. 1 न्यूटन का फोर्स और 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विल गिव यू 1 जूल ऑफ वर्क. ओके, सो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज applied so that object covers 1 meter displacement. ओके, जब ऑब्जेक्ट क्या कवर करता है बेटा? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है कि नहीं, है ना? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में देखना है 1 जूल ऑफ वर्क कितना होता है, इट इज सिंपल. 1 जूल ऑफ वर्क इज दैट वर्क. ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और उस वजह से वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम. ओके, बताइए मुझे, वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. am I right? फोर्स क्या है? फोर्स इज रिटन एज मेजर्ड इन डाइन्स. ठीक है, ठीक, सीजीएस में. एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स. तो ये हो गया डाइन सेंटीमीटर, एंड दिस इज टर्म्ड एज अर्ग. ठीक है कि नहीं, है ना? तो वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग व्हेन 1 dyne force is applied on an object and it covers the displacement of 1 centimeter. Okay, so we can write it.
work done is said to be work is said to be 1 erg when force of 1 dyne is applied so that object covers 1 centimeter displacement. ओके, जब ऑब्जेक्ट कवर करता है 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट को. एम आई राइट? ठीक है, चलिए अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग? यू मे राइट इट. देखिए बेटा, नाउ अगर आप 1 जूल निकालना चाहें तो 1 जूल इज 1. जूल का मतलब क्या है? न्यूटन मीटर. ओके, अब बताइए 1 न्यूटन का क्या है? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन. ओके, इनटू दिस इज मीटर, तो लेट मी राइट इट सेंटीमीटर्स, तो इट विल बी 10⁻² सेंटीमीटर्स. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. ओके, सो यू मे राइट 1 जूल इज, this is 10⁵, 10⁻², that will be 10⁻7. Okay, this will be 10⁻7 dyne centimeter, and that is 10⁻7. What is dyne centimeter? That's erg. So erg. Okay, so remember from now 1 joule is 10⁻7 ergs. So which is the bigger unit of work? Obviously joule. 1 joule is 10⁻7 times erg. 1 erg. Okay, this is the relationship which connects the two units. Okay, now the story doesn't end here. There are other units also, gravitational units of work. Since देखिए, it involves force. वर्क जब आप कैलकुलेट करेंगे, you have to take into account the force. ठीक है, so force के जो units हैं, they are gravitational units also. ठीक है, there are also gravitational units. So correspondingly वर्क के भी gravitational units होते हैं. ठीक है, what are the gravitational units of force? One is kilogram force, another is gram force. Okay, kilogram force and gram force. ठीक है, चलिए ठीक है, देख लीजिए. We'll be discussing now gravitational units. बहुत ही आसान है, gravitational units. ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है. इस तरह से अगर वर्क है, इस तरह से आपको F.S है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर आप लगाएंगे किलोग्राम फोर्स, kgf. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे फोर्स, लेकिन कितना? 1 किलोग्राम फोर्स, 2 किलोग्राम फोर्स, 3 किलोग्राम फोर्स, व्हाटएवर. एंड जब आपने ये किलोग्राम फोर्सेस अप्लाई किया तो उस वजह से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की इन मीटर्स. ओके, ठीक है, सो इस तरह से हम कहेंगे कि वर्क का यूनिट क्या है? kgf मीटर. ओके, किलोग्राम फोर्स मीटर. Right? Kilogram force. Hey, kilogram and force, they are not separate. We say kilogram force is a unit of what? This force, and m denotes meter, which is the unit of displacement. Okay, so you can write it like this way. W is equal to. By the way, tell me what is kgf? What do you mean by kgf? 1 kilogram force कितना होता है? 9.8 न्यूटन. Okay, 9.8 न्यूटन का जो फोर्स होता है ना, उसको कहते हैं 1 kgf. ठीक है, देखो एक्चुअली एक्सेलरेशन इज 9.8 ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, यू राइट g इज इक्वल 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, है ना. और तो साइंटिस्ट ने यूनिट भी डिफाइन कर दिया कि अगर 9.8 न्यूटन होंगे तो वी विल कॉल इट एज 1 kgf. ओके, सो 1 kgf इज 9.8 यूनिट्स, 9.8 न्यूटन, है ना. 1 kgf 9.8 न्यूटन. सिंपल है यार, कन्वर्शन है. ठीक है, अब देखिए, तो 1 kgf मीन्स 9.8 न्यूटन और साथ में मीटर है, तो इट विल बी 9.8. व्हाट इज न्यूटन मीटर? इट इज जूल. सो अगर आज से कहे कोई कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, तो यू विल से इट इज kgf मीटर. एक्चुअली जब हम कहते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट पर हम शाबाश 1 किलोग्राम फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब हम वहां पर कहना चाहते हैं कि हमने 9.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो वर्क कितनी हुई? 9.8 जूल. 9.8 जूल. ठीक है कि नहीं? सो यू विल से दैट वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर. इट्स कॉल्ड एज 1 किलोग्राम मीटर. ओके, 1 किलोग्राम फोर्स when 1 kg of force is applied and it covers a displacement of 1 meter.
Okay, 1 kg of force यानी 9.8 Newton force is applied and it covers a displacement of 1 meter. Okay, so you may remember this definition. Now also we can write it as like this, force dot displacement. देखिए ये जो force है ना, we can write as gram force. Not necessary कि हम kgf लिखें, हम gf लिख सकते हैं, gram forces. Okay, and to what displacement को लिखेंगे सेंटीमीटर. Okay, तो जरा बताइए 1 ग्राम फोर्स कितना होता है? 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन. ओके, देखो यहां पे एक चीज याद रखोगे, kgf इज डिफाइंड इन एसआई सिस्टम. ठीक है, ऐसे है ना, 1 kgf इज 9.8 न्यूटन और ग्राम फोर्स इज डिफाइंड इज सीजीएस सिस्टम 980 डाइन. सी 9.8 is the value of acceleration due to gravity in SI system, but 980 is the value of G, acceleration due to gravity in CGS system. Okay, right? So चलिए ठीक है, तो ये हो गया 980 डाइन सेंटीमीटर. Okay, तो work will be 980 and what is डाइन सेंटीमीटर? It is erg. Simple. ओके, सो वी कैन से कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 ग्राम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो वर्क कितनी होगी? 980 अर्गस. वर्क विल बी 980 अर्गस. ठीक है कि नहीं? ओके, दीज आर द वेरियस वेज इन विच वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर देम. वन ऑफ देम इज जूल. ओके, अनदर वी सेड इट इज अर्ग. सेकंड थर्ड यूनिट इज दिस kgf मीटर या किलोमीटर इसको बोलते हैं, एंड दिस इज gf सेंटीमीटर मींस ग्राम सेंटीमीटर. ओके, ठीक, तो यू मे रिमेंबर ऑल ऑफ दीज 4 यूनिट्स. ओके, तो ये है अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर किसी जगह पे फोर्स लग रहा है लेकिन वो फोर्स जो है दैट इज अ वेरिएबल फोर्स, मतलब वो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, समझ लीजिए बेटा, इस तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और सपोज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स ऑपरेट हो रहा है. ठीक है, से फॉर एग्जांपल द फोर्स ऑपरेटिंग इज F. चलिए बेटा, पहले तो मैं क्या कंसीडर करता हूं, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मानता हूं. लेट अस से दिस इज O. अभी ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, डिस्प्लेसमेंट S1 पर. ठीक है, कितना दूर है ओरिजिन से? S1. ठीक है, अब जब आपने ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया तो ये ऑब्जेक्ट कहां चलेगा? इट विल मूव फॉरवर्ड. ओके, फोर्स तो इसी डायरेक्शन में. चलिए, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, राइट. सो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट यहां से हो गई S2. सो यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है ना, लेट मी राइट इट बाई ds. ओके, एंड यू नो ds इज S2 माइनस S1. ठीक है कि है ना, ds इज S2 माइनस S1. ठीक है, चलिए, लेट अस से द फोर्स अप्लाइड F, force applied is not constant. चलो मान लेते हैं कि जो फोर्स आपने यहां पे अप्लाई किया है वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है. ठीक है, अब देखिए जब कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा ना तो हार्डली स्ट्रेट लाइन मोशन होगी. स्ट्रेट लाइन मोशन अक्सर नहीं हुआ करती है जब फोर्स वेरिएबल होता है. वेरिएबल फोर्स के अंडर में इस तरह की मोशन नहीं होती है. तो फिर कैसे होती है? अगर यहां पर एक पार्टिकल है और उस पर फोर्स लगे रहे वेरिएबल, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मेनली इस तरह का कुछ पाथ कवर कर लेगा. ठीक है कि नहीं, है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ पाथ वो कवर कर लेगा, एनीथिंग, राइट. ठीक है, कोई भी पाथ. चलिए देखिए, अगर यहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ फोर्स अप्लाइड F एंड आपको निकालना है इस केस में वर्क कितना हुआ. फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है और पाथ भी सीधा नहीं है, देखो ना, उल्टा सीधा पाथ है. ठीक है, कर्व्ड पाथ है. तो क्या करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से, यू विल टेक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस पाथ एंड लेट अस से दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ds, है ना, एंड ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, इट इज स्ट्रेट लाइन. ओके, सिमिलरली यू विल टेक अदर डिस्प्लेसमेंट ds. Similarly, you will take other displacement ds. You will take then other displacement ds, then other displacement ds, then other displacement ds. और ऐसा करते करते बड़ी चालाकी से आप लास्ट तक इस पाथ पे पहुंच जाएंगे. ठीक है, सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी. ओके, ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, देखो फोर्स तो लग रहा है और वो फोर्स क्या कर रहा है, उस वजह से ऑब्जेक्ट कर रहा है पहले डिस्प्लेसमेंट का और ds,
उसके बाद फोर्स कंटिन्यूअसली ऑपरेट हो रहा है, देन इट कवर्स मोर डिस्प्लेसमेंट ds, देन मोर डिस्प्लेसमेंट ds, देन मोर डिस्प्लेसमेंट ds, ओके। और ऐसे ऐसे करते करते ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है ना। कैन आई कैलकुलेट वर्क डन, मैं इस तरह से कैलकुलेट करूंगा, वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ds इज, अगर छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ds, इसमें कितना वर्क हो रहा है, आई कैन कैलकुलेट। लेट अस सपोज वो स्मॉल वर्क dw है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना फोर्स लगा, F डॉट कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, ds, ठीक है। ये वो वर्क है जो तब हुई जब ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds कवर करी, ठीक है कि नहीं, है ना। इतनी ही वर्क होगी जब ऑब्जेक्ट एक और डिस्प्लेसमेंट ds को कवर करेगा, है ना। इतनी ही वर्क होगी जब ऑब्जेक्ट एक और डिस्प्लेसमेंट ds को कवर करेगा, ठीक है। सो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, राइट, F डॉट ds एक डिस्प्लेसमेंट के लिए, प्लस F डॉट ds दूसरी डिस्प्लेसमेंट के लिए, प्लस F डॉट ds तीसरी डिस्प्लेसमेंट के लिए। ऐसा करते करते आप चले जाएंगे टिल यू विल रीच पाथ पॉइंट बी, ओके। दिस इज द वे टू ट्रीट ए वेरिएबल फोर्स प्रॉब्लम, राइट। सो टोटल वर्क डन इज आप कहेंगे सर W, दैट इज इक्वल टू F डॉट ds प्लस F dot plus dash 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 and so on. Okay, so total work can be written as, इन सबको sum up करो, sum up all the F dot ds's and summing is given by summation. So this is F dot summation या integration, but in this case integration. Okay, integration, it means sum up. Okay, from where to where, from A to B. Okay, let me write the limits from A to B. This will be the work. ओके, जब एक वेरिएबल फोर्स इन्वॉल्व होगा तो ये वर्क होगी, ओके। या ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो टिल्टेड होगा, ठीक है, वो सीधा साधा पाथ नहीं होगा, ओके। लेट मी टेक द सेम पाथ, सपोज यहां से फोर्स है, यहां से डिस्प्लेसमेंट, और ऑब्जेक्ट ने ऐसे वाला कोई पाथ कवर कर लिया, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। सो व्हाट यू डिड, टेल मी व्हाट यू डिड, you just divided this path into small pointers ds, okay, then ds, then ds, then ds, then ds, ds and ds, ठीक है कि नहीं, है ना। तो पहले आपने देखा यहां से यहां तक इस पाथ को कवर करने में कितनी वर्क हुई, ओके, लेट मी कैलकुलेट दैट। इस पाथ को कवर करने में कितनी वर्क हुई, यहां से यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट है, यू आर राइटिंग इट ds and there is a force F, so ये कितना होगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पीस इन फैक्ट यार, इसका एरिया कितना होगा, F डॉट F ds, है ना। सिमिलरली इस डिस्प्लेसमेंट के लिए बताइए व्हाट विल बी द वर्क, F डॉट ds, इसके लिए बताइए F डॉट, सिमिलरली इस वाले के लिए बताइए F डॉट ds, ठीक है कि नहीं। सो व्हाट यू विल से, वर्क इज नथिंग, वर्क डन W is nothing but integral, okay, let me say, हाँ, point A to B तो है ही, point A to B F dot ds, oh, which is nothing but the area under force displacement curve, okay, which is nothing but it is area under FS curve, okay। तो ये तो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जब भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया होगा और कहा जा रहा होगा वर्क कैलकुलेट करो, व्हाट यू विल डू, यू विल कैलकुलेट द एरिया अंडर दैट कर्व, ओके। उसी से आपको पता चलेगा क्या वर्क कितनी है, राइट। ओके, लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जांपल, infinitesimally small, okay. Say for example if force is like this way, if force is 20 Newton, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स आपने अप्लाई किया एंड से फॉर एग्जांपल इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ 20 न्यूटन, ओके, और से फॉर एग्जांपल इट इज लाइक दिस, ओके, लेट अस राइट इट, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, न्यूटन। किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स इस तरह से अप्लाई किया, अब आप पूछेंगे ये क्या लिखा आपने, x स्क्वायर 2x, इसका मतलब है फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यू विल चेंज द डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स विल चेंज, that is a variable force, okay. So and it moves from
it moves from x is equal to 1 meter to x is equal to 10 meter. ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया, राइट, फोर्स ये है, ठीक, और उस वजह से क्या कर गया ऑब्जेक्ट 1 मीटर से 10 मीटर तक चला गया, मतलब पहले ये ओरिजिन से 1 मीटर तक पे था, उसके बाद 10 मीटर पर चला गया. फाइंड वर्क, फाइंड व्हाट, वर्क. देखिए इस तरह से वर्क किसके बराबर है, इंटीग्रल एफ डॉट डीएस, लेकिन कहां से फ्रॉम ए टू बी. ओके, लेट मी राइट इट. ए क्या है, इट्स 1 एंड बी क्या है, इट इज 10. फ्रॉम वायर टू वायर 10. x is, this is x square plus 2x plus 3 and then displacement is dx. Okay, since the object is moving along x-axis, so we are taking the displacement in a very this finite narrow sense as dx. Okay, so work will be equivalent to, say this, how to integrate it, you know. Okay, taking the integrations 1 to 10 x square dx plus 1 to 10 2x dx plus 1 to 10 3 dx. You are familiar with integrations. Okay, we know it is simply x cube by 3 from 1 to 10, it is 2 x square by 2 from 1 to plus 3x from 1 to 10. Okay, the integral is definite. There is no constant of integration, there will be no constant of integration. It will be 10 cube minus 1 cube divided by 3, just upper limit minus lower limit. Okay, plus 2 and 2 will go, so this will be 10 square minus 1 square plus 3 into 10 minus 1. Okay, whatever it is in joules, work will be that big. Okay, is it clear now? ठीक है, will you be able to do it now? Okay, so is that clear? Let me say there is an example like this way, an object is there and उसके लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना के है. Say for example the graph goes like this. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना के आपको निकालनी है वर्क. क्या निकालनी है, वर्क. जरा बताइए वर्क किसके बराबर होगी, एरिया अंडर एफ एस करो. तो एरिया तो आपको पता है, जरा निकालिए एरिया, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट है ना. तो एरिया विल बी हाफ ऑफ बेस, यहां से यहां तक कितनी बेस है 2 और ऑल्टीट्यूड कितना यहां से यहां तक 10. ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया है ना. फिर इस रेक्टेंगल का दैट विल बी लेंथ, लेंथ है 20 minus 2 that is 18 और ब्रेड्थ है 10. तो दिस इज 2 and 2 cancel, 10 plus 180 that is 190 joule. Okay, right, this is the work. So this is the method how to calculate what work in case of there is a variable force. Okay, so you may do this problem like this. Okay, we will be seeing more parameters in next lecture inshallah.